Hello students, today we will learn about English grammar. The topic name is noun. So first we will learn about what is noun. Noun are the names of the place, people, animals or things. Noun are also called naming word. So here name of people means if we find a sentence, in a sentence there is a word of in a subject part or object part. If there the word is mentioned boy or girl, man, woman, player, singer, so these are the people related noun. Okay. In the same condition applied for the places. If in a sentence if we found bank, hospital, school, then the noun part is the bank, hospital. Okay. Then in case of animals, name of the animals are lion, elephant, cheetah. We all know. Okay. Then things, books, computer, television, etc. are the things, name of the things. Okay. Now student, we will know about kinds of nouns. How many types of nouns are there? So there are 5 kinds of nouns. One is proper noun, common noun, second is common noun, third is abstract noun, fourth is material noun, and fifth is collective nouns. Let's know what is proper noun. Means in a sentence we know noun, but which kind of noun we will now know from this chapter. Got it student? समझ पा रहे हो कि नहीं? सो हमें अभी यहाँ पे क्या पता चला कि नाउन किसे कहते हैं ना, पीपल, नेम ऑफ पीपल को कहते हैं, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ थिंग्स, और किसी का भी नेमिंग वर्ड, जैसे कि पीपल का नाम बोला जाए तो बॉय, गर्ल, मैन, या फिर प्लेस का नाम बोला जाए तो बैंक, हॉस्पिटल, या फिर एनिमल्स का नाम बोला जाए तो लायन, एलिफेंट, या फिर थिंग्स का नाम बोला जाए तो बुक, कंप्यूटर. फिर हमने क्या जाना ना, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं. तो यहाँ पे मेंशन है नाउन के 5 प्रकार होते हैं. क्या क्या ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. पहली बात हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जानेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है ना, नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग. अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम बताया गया होगा, पीपल का नाम बताया होगा, या फिर एनिमल्स का नाम बताया गया होगा, या फिर थिंग्स का नाम, तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे. जैसे कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर. ऑलवेज, जैसे ही वर्ड में, सेंटेंस में पहला जो वर्ड होता है सब्जेक्ट पार्ट, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है ना, तो उसको भी हम लोग कंसीडर, उसी को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, प्रॉपर नाउन. जैसे कि पीपल का नेम क्या है, समीर है, मैरी है, पहला लेटर यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर है ना, पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल लेटर है, पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल लेटर है. देन अगर प्लेसेस का नाम जाए तो दिल्ली, आगरा, पटना, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है. फिर एनिमल्स का चेतक, सैंडी, अपू, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल लेटर है. थिंग्स का नाम क्या क्या है, लिप्टन टी, मारुति का, तो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल लेटर है. ठीक है, समझ में आ गया ना प्रॉपर नाउन क्या है. तो सेंटेंस में अगर हम किसी नाउन को, किसी पीपल का नेम दिखेंगे, या फिर प्लेसेस का नेम दिखेंगे, या फिर एनिमल्स का नेम दिखेंगे, या फिर थिंग्स का नेम दिखेंगे जिसका पहला लेटर कैपिटल लेटर हुआ होगा, पता चल गया. मीन्स इफ वी फाउंड इन ए सेंटेंस name of a people or a name of a places or name of animal or name of things which the first letter begins with capital letter, then we will consider it as a proper noun. Now we will consider as a, now let's know about common nouns. What is common noun? Common nouns are the general names of people, places, animals or things. Common nouns usually begin with a small letter. So here difference between proper noun and common noun is, in case of proper noun we will found the first letter of the word is capital, but in case of common noun we will found the first letter of the word is small. Okay, so here also people means the occupation, doctor, engineer, nurse. Common noun means is what is his occupation, what is doing, what is known as. The people is what is known as, he is known as a doctor, this person known as an engineer. समझ में आ रहा है ना. कॉमन नाउन मतलब उस शब्द में पहला लेटर छोटा लेटर होगा, और अगर पीपल का नाम कॉमन नाउन में बताया जाएगा तो हम क्या समझेंगे ना,
पीपल कौन सा काम कर रहा है, कि वो एक डॉक्टर है, क्या है वो, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक नर्स है, ऐसे। अगर प्लेसेस को कंसिडर किया जाए तो ये गार्डन हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, हाउस हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में प्लेसेस का नाम पर्टिकुलर होता था और उसका पहला लेटर बड़ा होता, लेकिन कॉमन नाउन में वो जगह क्या है, एक गार्डन है या ऑफिस है या हाउस है, ऐसे। फिर अगर एनिमल्स को कंसिडर किया जाए तो वो फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, मंकी है, क्रोकोडाइल, ये सब। थिंग्स को कंसिडर किया जाए तो बॉटल, कप, सॉसर, कुकर, बकेट, मिरर, ये सब, ठीक है। अभी हम लोग स्टूडेंट जानेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ एक्शन, आइडियाज, क्वालिटीज ऑफ or feelings. Abstract nouns can neither be seen nor touched. We can only realize them. So, in case of particularly, here focus student, abstract noun means you have to keep in your mind. Abstract noun means your feeling which we unable to touch or sense, only we feel it, only we just means क्या, हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम गुस्सा आ रहा है तो हम, ये अंदर की चीजें हैं, हम गुस्से से क्या हो जाता है, रो देते हैं, या फिर हमें अगर दुखी होती है, भावनाओं में बह जाती है, एक भावना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लो, बताया गया है कि हम उसे छू नहीं सकते, बस उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रियलाइज देम, ठीक है। तो अराइवल, मोमेंट, डिपार्चर, अपीयरेंस, ये सब हम देख सकते हैं। मतलब एक्शन, एक्शन रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अराइवल है, मूवमेंट है, डिपार्चर है, अपीयरेंस है। और क्वालिटीज रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ट्रूथ, सच बोलना, या फिर उस टाइम उसकी भलाई, उसकी ज्ञान, वो कितना ज्ञानी है, ऑनेस्ट, वो कितना भला है, मतलब कितना ऑनेस्ट, मतलब साधा सीधा है, ठीक है। ब्रेवरी, कितना साहसी है, कितना स्ट्रेंथ, मतलब कितना बलवान है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये कुछ वर्ड्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव्स। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग एडजेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब में कर सकते हैं, या कॉमन नाउन में। यहाँ पे देख लो एडजेक्टिव कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हुए हैं। एब्सेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हुए क्या हो गया, एब्सेंस। एंग्री का एंगर, ब्रोड का ब्रेथ, ब्रेथ, हाँ, ब्रेव का ब्रेवरी, ट्रू का ट्रूथ। ऐसे ही करके ये सारे को अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है और इसको मेमोराइज करना है, लर्न करना है। समझ रहे हो ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस गिवन बिलो वर्ड्स। हाँ, एडजेक्टिव, द वर्ड बिलोंग्स टू एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, उसका वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अभी so now let's know about material nouns. What is material nouns? Material nouns are the names of materials and substances. So basically if we found name of any material or any substances, then we consider as this is a material noun. अगर हम किसी धातु का नाम जानना चाहें या सब्सटेंस का नाम, तो वो material noun को बिलोंग्स करता है। क्लियर स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल है मिल्क, फूड, गोल्ड, एयर, वाटर, एवरीथिंग, these nouns are known as material noun. Now let's know about collective nouns. What is collective noun? Collective nouns are the names of a group of peoples, place, animals or things. हाँ, colored words are here mentioned collective nouns. हाँ, so कलेक्टिव नाउन क्या है ना, किसी समूह का नाम, ग्रुप ऑफ, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इस ग्रुप ऑफ प्लेसेस से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे जनरली ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप को मेंशन किया जा रहा है, ग्रुप का नाम मेंशन किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। हियर ग्रुप ऑफ पीपल, a troop of soldiers, so troop word is the what, collective noun. Here colony of house, here colony is the collective noun. Group of places, हाँ, यहाँ पर group of animals means a shoal of fish, so shoal is the collective noun. Here group of things, bunch of keys means थिंग, ये चाबी का गुच्छा है, तो जो बंच वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, इसको भी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखो। डू राइट द सम मोर कलेक्टिव नाउन्स इन योर कॉपी एंड ऑल्सो लर्न इट प्रॉपरली, ओके। So here next things, let's student, we will learn about countable and uncountable. The countable part which we can count and uncountable part which we cannot count. Okay, means countable हम जिसको गिन सकते हैं, संख्या में ले सकते हैं, अगर वो काउंटेबल उसे कहा जाता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन समझा जाए तो जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन फिर भी वो नाउन में कंसिडर होता है। तो नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड।
easily. Countable noun have plural form. Countable noun take a and the and any before them. हाँ, so countable noun क्या होता है ना, प्लूरल फॉर्म में जनरली होता है, जिसको हम लोग, अगर ए होता है तो वो सिंगुलर, एन होता है सिंगुलर, दी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, लेकिन एनी मतलब उन्हीं में से कुछ एक, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या कहते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर यूजुअली रिटन इन सिंगुलर, ठीक है। जनरली काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं ना, ए इतना नेम मतलब ए हाइव, एन एनिमल ऐसा करके मेंशन करते हैं, या फिर द वैली, हाँ, या फिर एनी ऑफ वन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम of things that cannot be counted, they are usually written in singular form, जैसे कि the, some, much, a little, a large amount, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। यहाँ पे फ्लावर, रेड काउंटेबल नाउन है, लेकिन मिल्क, शुगर, ऑयल ये काउंट हम लोग कर नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। स्टूडेंट, नाउन चैप्टर में पढ़ा दी तुम लोगों को। नाउ इट्स योर टर्न्स, डू द एक्सरसाइज। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल दिस आंसर, बट ट्राई टू राइट ऑफ योर ओन। हाँ,